اللہ کے महबूब علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدہ ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کی زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت۔ آپ سے ہم پہلی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں جو آپ اس ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجئے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر جائیے۔ جی ہاں دوستو، ہم اس ویڈیو میں ایسی چیز جاننے والے ہیں جو شاید آپ کو کبھی یہ چیز معلوم ہوا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو موجودہ حالات ہے، ہر کوئی یہ جان رہا ہے جو اسرائیل سے ایران کیسے جیتے گا، کیونکہ ایران ایک کمزور ملک ہے اور اسرائیل کے ساتھ تو امریکہ جو دنیا کا سپر پاور ملک ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ میں ہے، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اس سے وہ کیسے جیتے گا ایران۔ لیکن آپ کو یہ ہونا چاہیے دماغ میں، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے ایران کے سپریم لیڈر کا آپ تو بیان سنتے ہی ہوں گے، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جو جس طریقے سے اسرائیل نے غزہ اور فلسطین کے غیر مسلمانوں کے اوپر، وہاں کے معصوم بچوں کے اوپر جو ظلم کیا، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں، جو غزہ کے جو مسلمان ہیں، کس طریقے سے صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کیسا ان لوگ کا، جو کسی سے یہ بھی رونا نہیں رویا جو ہمارے اوپر کتنا مصیبت آ گیا ہے، آنکھوں سے اپنے بچے کا موت دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دفنا رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر اتنا یقین تھا اور اتنا اس پہ توکل ہے، لیکن پھر بھی کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں جو کس طریقے سے مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب کیا کچھ بتاتے ہیں، آخر کب وہ وقت آئے گا جو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا غالب آئے گا۔ جی ہاں دوستو، اور حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے جو اللہ کے رسول فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں کیا کچھ بتائیں، سارا چیز اس میں ہم جاننے والے۔ جی ہاں دوستو، آئیے ہم پہلے آپ کو ہم ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدہ ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کی زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہٰذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں
क्योंकि 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान भीगी हुई बिल्लियां हैं, इसलिए वो शेर बने हुए। और आज वो मुस्लिम खवातीन पर शराब फेंक रहे हैं। चंद इसराइली नौजवान इकट्ठे होते हैं और कहते हैं फलां इलाके में चलो, गजा के फलां इलाके की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। ये उम्मत का, ये आज का दर्द है, लेकिन हमारे सीने में ठंड पड़ती है हुजूर कुन फरामीन को पढ़ के कि ये किसी पत्थर के पीछे छुप के पनाह लेना चाहेंगे तो मुखबिर सादिक आमिना के लाल ने फरमाया वो पत्थर आवाज दे के मुस्लिम मुजाहिद को कहेगा इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। कोई दरख्त भी इनको पनाह नहीं देगा सवाए अल गरकत नामी एक दरख्त के, जिसके बारे में वो झाड़ी है, हुजूर फरमाया शजरतुल यहूद, ये यहूदियों का दरख्त है, ये सिर्फ पनाह देगा, उसके अलावा कोई इनको पनाह भी नहीं देगा। और सुनो सुनो, तुम्हें ठंड पड़नी चाहिए। हमारा अंदर सुलग रहा है इस वक्त उम्मत के हालात को देख के, लेकिन खजां के बाद का मौसम बहार होता है, इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। और ये हुजूर का फरमान और सही हदीस है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया पत्थर और गारे से और ईंट और जो है वो मट्टी से बना हुआ कोई घर, ऊन और चमड़े का बना हुआ कोई खेमा फिर ऐसा नहीं रहेगा जहां कलिमतुल इस्लाम दाखिल नहीं होगा। गोया शरक से गरब तक, शमाल से जुनूब तक कायनात की एक एक छत पे झंडा मेरे हुजूर के नाम का झूल रहा होगा। अल्लाह का वादा हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह ने वादा किया कि दीन इस्लाम को मैं गालिब करके रहूंगा, रसूल को भेजा इसलिए है। और वो जमाना, वो वक्त देखेगा 40 साल तक खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम रहेगी। हत्ता कि बकरी घाट के ऊपर पानी पी रही होगी तो शेर आएगा तो एक कोने में पानी पी के चला जाएगा, उसको हिम्मत नहीं होगी कि बकरी को आंख उठा के देखे कि मुसलमानों का खलीफा बैठा हुआ है। 40 साल तक ये अमन कायम रहेगा और पूरी दुनिया के ऊपर झंडे मेरे हुजूर के झूलते रहेंगे। और ये वक्त आना है, मैंने और आपने अपनी नस्लों को बता के जाना है दज्जाल के बारे में। सहाबा दज्जाल के बारे में अपनी नस्लों को यूं सिखाते थे जैसे कुरान की आयतें सिखाई जाती हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर ने हमें दज्जाल के बारे बताया और थोड़े फासले पर खजूर का एक झुंड था और हुजूर बयान कर रहे थे। और इस तरह हुजूर ने कहा कि बस वो बहुत जल्द आने वाला है, तो हमें लगा कि इस झुंड के पीछे होगा कहीं, अभी निकल के आ जाएगा। इस कदर सहाबा को बताया कि बहुत जल्द दज्जाल ज़हूर पजीर होने वाला है। और आज तो दज्जाली फितने पूरी तरह से महवे नफूज हैं और गली गली दज्जाल अपनी तमाम तवानाई के साथ मुसलमानों को जो है वो कैप्चर कर रहा है। मैं कहता हूं अगर हमने अपनी नस्ल को ना बताया तो आने वाली नस्ल हमारी दज्जाल के कब्जे में होगी, अगर उसके साथ नफरत पैदा ना की तो। क्योंकि वो भरपूर पैकेज भी देगा, जिंदा भी करेगा, मारेगा भी। आज भी लोग कहते हैं जनाब जो है वो हमने अपनी मैशत भी तो बचानी है, हमारे ऐवान बाला के अंदर करारदाद पेश की कि हमें भी डॉलर चाहिए, तो वो पैकेज भी देगा और दूसरी जानब खौफ भी देगा। और बहुत सारे लोग दज्जाल के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिनके सीने में ईमान का चरागा होगा वो टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, फिर भी कलमा हक नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने आप को इतना मजबूत करना है, अपनी नस्लों को इतना मजबूत करना है, ये किसी सूरत के अंदर भी दज्जाल के साथ खड़ी ना। ये जो 30 झूठे नबूवत के दावेदार हैं, इनको कज़्ज़ाब भी कहा गया, इनको दज्जाल भी कहा गया। और दज्जाल आजम, बड़ा दज्जाल, वो सबसे आखिर में आने वाला है, लेकिन वो उसका इस्तदराज तो होगा जो कुछ देर चलेगा, लेकिन हजरत ईसा के अनफास से वो पिघल जाएगा और अल्लाह इस्लाम का बोलबाला करेगा। तो आज नहीं तो कल इस्लाम का बोलबाला होने वाला है। इन मुश्किल हालात में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला नहीं होना, कमजोरी में नहीं आना। ये मुश्किल हालात हैं इस वक्त उम्मा के ऊपर, और 56-57 इस्लामी मुल्क जो है वो हथियार फेंक चुके हैं। ये कल का ही आप जनरल असम्बली का इजलास उठा के देखिए, कश्मीर की बात की ही नहीं गई, छोड़ दिया कश्मीर को। फलस्तीन का भी नाम छोड़ दें, कोई परवाह नहीं, जमाना छोड़ दें। मैं कहता हूं मालिक, वो जो डटे हैं अक्सा के दरवाजे पे, उनके हौसले ना टूटने देना, उनको सरबुलंद रखना, उनको ऊंचा रखना, और उनके पैगाम का इबलाग दुनिया के ऊपर होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा होगा। आ मिलेंगे सीना चाकाने, चमन से सीना चाक, बज़ में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह हमने हिस्सा डालना है और दुआ करनी, अल्लाह अगर हमारी जिंदगी में हजरत इमाम महदी हजरत ईसा आए
अल्लाह उनके लश्कर में शामिल फरमाना, और हमारी औलादों या औलादों की ज़िंदगी में ये सादत उनको नसीब हो। तो अल्लाह वो दज्जाल के साथ ना खड़े हों, वो इमाम महदी के साथ खड़े हो, हज़रत ईसा के साथ खड़े हों। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी नस्लें दज्जाल के साथ नहीं खड़ी होंगी, उनकी रूह और दीन का नूर उनके सीने के अंदर ढेल गए, उसके दो आंखों के दरमियान वाज़े तौर पे काफिर लिखा होगा, जो मोमिन देखेगा भी पहचानेगा भी, और जब पहचान लेगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसके जिस्म की बोटियां की जाती हैं या कीमा किया जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ा होकर कहेगा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं हजरत ईसा के लश्कर में शामिल हूं। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत को गलबा अता फरमाए और हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का सच्चा सिपाही बनाए और दुनिया आखिरत की बलाइयां हमारा मकसूम करे। इकबाल के सारे फलसफे का रस निचोड़ें तो जो जूस निकलता है, रस निकलता है, वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहता है हुजूर से वफा कर लो, फिर कलम भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें ही दे देंगे, लौह भी तुम्हें पकड़ा देंगे, फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अनवर निकालते हैं और पहरे पर मामूर उस सहाबी को इरशाद फरमाते हैं कि तुम चले जाओ, मेरी हिफाजत मेरे रब ने अपने जुम्मा करम पे ले ली। सवाल ये है कि जितने भी पैगंबर, नबी, रसूल, जितने भी पैगंबर, नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं, अल्लाह जल्ला शानहू के सच्चे और फरिश्तादा रसूल और पैगंबर थे। उन्हें शहीद किया गया, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं फरमाई। हुजूर भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे ली और कहा कि महबूब तेरी हिफाजत हमारे ज़ुम्मे रही। तो ये एक दूसरा सवाल है। कुरान भी अल्लाह की किताब और बाकी किताबें भी जो इससे पहले नाज़िल हुई वो भी अल्लाह की किताब। हुजूर अल्लाह के रसूल, बाकी उससे कबल जो रसूल और पैगंबर हुए वो भी अल्लाह के फरिश्तादगान, उनकी हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे नहीं ली, हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे ली। इसका जवाब ही खत्म नबूवत की दलील है, और वो ये कि अगर किसी किताब में तहरीफ राह पा जाती है तो कोई बात नहीं, नई किताब उतरने वाली है और लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा सूखने वाला नहीं, नई किताब आने वाली है। कोई बात नहीं है, किताब में तहरीफ राह पा गई है तो दूसरी किताब आएगी, उसमें तहरीफ कर ली तीसरी किताब आएगी, उसमें तहरीफ कर ली तो चौथी किताब आएगी। कुरान के बाद चूंकि कोई किताब नहीं है, फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, इसके बाद तुम किस पे ईमान लाओगे? अगर इसमें भी तहरीफ की राह पाई जाती है तो फिर कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का कोई सरचश्मा नहीं होगा। तो कुरान की हिफाजत का जुम्मा अपने जुम्मा करम पे लेना इस बात की दलील है कि कुरान के बाद कोई किताब उतरने वाली नहीं है। एक पैगंबर को शहीद कर दिया जाता है, कोई बात नहीं, उसकी जगह नया पैगंबर आने वाला है, इत्माम दीन करेगा, इत्माम तौहीद करेगा, अल्लाह के पैगाम का इबलाग करेगा, रुश्द व हिदायत का चश्मा सूखेगा नहीं, उसके जरिए से नूर बढ़ता रहेगा, उजाले फैलते रहेंगे। दूसरे नबी को शहीद कर दिया जाता है, तीसरे नबी को, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत अल्लाह ने अपने जुम्मा करम पे ली कि महबूब आपने इत्माम दीन करना है, अगर आपको नुकसान पहुंच जाता है तो फिर इत्माम दीन कौन करेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का अल्लाह के जुम्मा करम पे होना इस बात की दलील है कि हुजूर के बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं। बस खुदा बर मा शरीयत खत्म कर, बर रसूल मा रिसालत खत्म कर। लेकिन जाली लोग, दो नंबर लोग अपने आप को नबूवत और रिसालत के दावे के साथ सामने लाते रहेंगे, और वो अल्लाह के महबूब ने पहले इरशाद फरमा दिया कि मेरे बाद 30 के करीब दज्जाल आएंगे जो ये दावा करेंगे, ये गुमान करेंगे कि हम नबी हैं, हम रसूल हैं, लेकिन फरमाया कि मेरे बाद कोई रसूल नहीं है, मैं आखिरी नबी। तो मुख्तलिफ अदवार के अंदर लोग आते रहे और जिन्होंने इद्दियाए नबूवत किया। खुद जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा का एक शख्स उठा और उसने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, और 40,000 लोग अपने गिर्द उसने जमा कर लिए और
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके मुआवजे में, उसके मुकाबले में बाकायदा फौज भेजी। 13,000 के करीब लश्कर जाके उसका मुआवजा करता है, उसका मुकाबला करता है और उसे शिकस्त फाश देता है। और इस रास्ते के अंदर, उस जंग में 1200 मुसलमान शहीद होते हैं। अगर आपकी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल हो और गौर और तदब्बर के साथ सुनने का मिजाज अगर आप रखते हैं तो बहुत गौर व फिक्र के साथ सुनने की बातें हैं कि 27 जंगें हुजूर ने लड़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, हयात तैयबा 10 साला ज़िंदगी जो मदनी है उसमें 27 जंगें हुई हैं। उन 27 जंगों के अंदर जो टोटल नुकसान हुआ है जानों का, जो शहादतें हुई हैं मुसलमानों की, उनकी तादाद 1000 से भी कम है। 27 जंगों के अंदर जो मुसलमान शहीद हुए हैं वो 800 से कुछ ऊपर नीचे, 1000 तक भी उनकी तादाद नहीं पहुंचती। उसमें बदर भी है, उसमें ओहद भी है, जंगे हुनैन भी है, गज़वाए तबूक भी है, जंगे यरमूक भी है, कितने बड़े बड़े मार्के हैं, गज़वाए ओहद भी है। लेकिन टोटल जो मुसलमानों को शहादतें नसीब हुई इन 27 जंगों में, उनकी तादाद है 1200 और 800 के आगे पीछे। और सिर्फ मुसैलमा कज़्ज़ाब ख़त्म नबूवत के बागी के खिलाफ जो एक जंग लड़ी गई दौरे सिद्दीकी में, उसमें सिर्फ 1200 लोगों ने जाने मारी हैं। 27 जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी इस एक जंग में शहादतें हुई हैं। ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि ख़त्म नबूवत का मसला कितना हसास मसला है। और इस हवाले से सदर अव्वल के मुसलमान सहाबा, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और पूरी कुव्वत के साथ डट करके जालिमों का मुकाबला किया। एक तो इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें। दूसरी बात वो ये कि 30 के करीब हुजूर ने फरमाया दज्जाल आएंगे और जो इद्दिया करेंगे, दावा करेंगे कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, और वो झूठे होंगे। और मुख्तलिफ अदवार में लोग आते रहे, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी और सजा, ये तो उसी ज़माने में आ गए। बाकी उसके बाद आज तक मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ लोग आते रहे। लेकिन जब वो लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, तो उनकी जो जमात उनके साथ शामिल हुई, जो लोग शामिल हुए, उनकी झूठी उम्मत बनी जो, तो वो भी उनके साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। आज आप दुनिया भर में ढूंढेंगे तो असवद अंसी का मानने वाला कोई मौजूद नहीं होगा।